Good morning, students. I'm Kirti Sharma, your English teacher from Kalpana Chawla Vidyapit School. So today we are going to start the chapter 7 of class 8, Begum Hazrat Mahal. Firstly, let me brief you about this chapter. In this chapter, the Queen Begum Hazrat Mahal, how she rebelled against the Britishers and what happened and what made that so that she has to go against them, और क्या उनकी क्राइटेरिया और क्या फिर उनकी सिचुएशंस रही उनके साथ एंड व्हाट हैपेंड टू देम वी विल लर्न एंड रीड इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. Begum Hazrat Mahal, the Queen of Awadh, was feeling lonely and abandoned at the Chatar Mahal, the royal palace in Lucknow. The East India Company had annexed the state of Awadh, exiled her husband Nawab Wajid Ali Shah to Calcutta, now Kolkata. So in this first paragraph, बेगम हज़रत महल जो क्वीन थी अवध की, वो बहुत लोनली फील कर रही थी. वाई एंड छतर पर अबेंडेंट फील कर रही थी, बहुत लोनली एंड अबेंडेंट फील कर रही थी, बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी. एंड वाई इज़ दैट? बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके हस्बैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी है एग्जाइल, मतलब उसके हस्बैंड को उन्होंने पकड़ कर हर हस्बैंड नवाब वाजिद अली शाह को कैलकाटा में कैदी बना के रखा हुआ था. दैट्स वाई शी वॉज फीलिंग वेरी लोनली. द resplendent beauty of the palace could do a little cheer up the queen. She recalled the day when she was given the title Pari, meaning fairy, and was included in the Nawab's group of dancers. Everybody, including the Nawab, was in such awe for her. The Nawab himself was a gifted dancer and a connoisseur of the arts. Then, the day when the Nawab made her his queen, could she ever forget this day? Could she ever forget that day? So in this part, she is just remembering her past. वो अपने past memories को remember कर रही है, पैलेस को देखकर, ब्यूटीफुल पैलेस को देखकर अपने आप को चीयर करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को हैप्पी करने की कोशिश कर रही है. शी वॉज रिमेम्बरिंग हर मेमोरीज विद हर हस्बैंड की कैसे उसे वहाँ पर कोर्ट में परी का टाइटल मिला. एंड शी वॉज द पार्ट ऑफ द डांसर ग्रुप. उसे नवाब के जो ग्रुप ऑफ डांसर्स थे, मेन ग्रुप ऑफ डांसर, उसमें में रहने का, पार्टिसिपेट करने का उसे मौका मिला. एंड एवरीवन वाज वेरी मच ऑ ऑफ हर ब्यूटी एंड डांस. ऑ ऑफ मीन्स, इस लाइन का मीनिंग होता है वाज इन सच ऑ ऑफ हर मीन्स उसको सब बहुत एंटिसिपेशन और मतलब अमेजिंगली चौंक कर देख रहे थे बहुत कि कितनी ब्यूटीफुल है या कोई कितना आकर्षित और अट्रैक्टिव है. नवाब हिमसेल्फ वॉज गिफ्टेड डांसर. नवाब जो थे वो खुद भी एक गिफ्टेड डांसर और कनोजर ऑफ आर्ट, मीन्स उन्हें आर्ट की परख थी. तो देन द डे व्हेन द नवाब मेड हर हिज क्वीन, और वो दिन कैसे भूल सकती है जब नवाब ने उसे क्वीन बनाया, अपनी वाइफ बनाया एंड अवध की क्वीन बनाया. फ्रॉम मोहम्मदी खानम, a poor orphan girl, to becoming a queen of Awadh, the journey had been extraordinary. And today, as if by another turn of fate, her husband was far away and beloved Awadh seized by the enemy. So she is saying कि उसका पहले नाम, before the marriage she was मोहम्मदी खानम, उसका नाम मोहम्मदी खानम था. And she was poor orphan girl. Her parents had already died and she was very poor. And she was telling that how exciting was her journey, exciting and extraordinary was her journey from being a poor girl and poor orphan girl to becoming the queen of Awadh. कि कैसे उसकी एक poor girl से अवध की queen बनने की जर्नी कितनी extraordinary रही. And अब क्या फेट है कि हर हस्बैंड इज़ नॉट फार अवे, कि हस्बैंड उसके कहीं और हैं एंड कैद हैं. एंड जो उसका बिलवड अवध है जहाँ पर वो रह रही है, वो भी एनिमी के कब्ज़े में है. कि एनिमी ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिशर्स, उन्होंने कैदी बना के रखा हुआ है अवध को. अम्मी हुजूरा, सॉफ्ट वॉइस इंट्रूडेड ऑन द बेगम्स थॉट्स. अ लिटिल बॉय स्नगल इनटू हर लैप. इट वाज बिरगिस कादर, हर बिलवड सन. She hugged him close. All was not lost, she thought to herself. जब उसका बेटा उसके पास आया तब उसे लगा कि ओके, अभी भी सब कुछ नहीं गया है, अभी भी उसके पास उसका बेटा है.
The British set about destroying the monuments, palaces, bazaar of Lucknow to make a way of railway tracks and roads. The zoo and the library was also not spared. All this great resentment among the local population, not contented with this, they forced the ladies of the Chatar Manzil to shift to a small wing of the Kesar Bagh Palace. अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वहाँ का मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, बाज़ार्स, सब कुछ, वहाँ के ज़ू, लाइब्रेरी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वहाँ पर वो अपना रेलवे ट्रैक्स और रोड्स बनाना चाहते थे। और इसी वजह से जो भी पॉपुलेशन थे, लोकल पॉपुलेशन थी जिनका रोज़गार वहाँ से चलता था, दे वर वेरी रिजेंटमेंट, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थे एंड दे वर वेरी एंग्री अगेंस्ट देम। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो छतर मंजिल की जो भी वहाँ पर लेडीज़ रहती थी पैलेस में छतर मंजिल पे, उन्होंने उन सबको एक छोटे से विंग केसर बाग पैलेस में शिफ्ट करवा दिया। On 29th March 1857, news reached Begum that the Mangal Pandey, a sepoy in the British Army, had shot dead a British officer at Barakpur. He was later hanged. This was the first beginning of the Sepoy Mutiny, as the British called it. For Indian, it was the first war of independence. अब उन्हें बेगम को वहाँ पर एक न्यूज़ मिलती है 29 मार्च को कि मंगल पांडे, द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, उसने मंगल पांडे ने ब्रिटिश आर्मी में घुसकर वहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर को गन से शूट कर दिया। ही वॉज हैंग लेटर, मतलब उससे लेकिन फांसी चढ़ा दी गई। बट जो वहाँ पर उनकी सिपाही इम्यूनिटी, जो ब्रिटिश को बोलते हैं कि वहाँ के सिपाही की कम्युनिटी जो भी है, उन्होंने, ये उनका फर्स्ट टाइम था रेबल का, मतलब जो उनका रेबल चल रहा था, ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम समवन रेबल्ड अगेंस्ट देम। एंड फॉर इंडियंस इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ये फर्स्ट वॉर थी जब किसी ने अपने आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट किया। Like other sepoys across India, the soldiers in Lucknow too protested against the cartridges they were being made to use in their rifles. जो बाकी इंडियंस की तरह जो भी वहाँ पर सिपाही थे, दूसरे सिपाहियों की तरह भी उन्होंने भी, जो इंडियंस सोल्जर्स थे ब्रिटिशर आर्मी में या वर्कर्स थे, उनको भी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। क्या चीज़ का प्रोटेस्ट था? अगेंस्ट द कार्टेजेस दे वर बीइंग मेड टू यूज़ इन द राइफल, मतलब जो राइफल्स के अंदर जो उनके अंदर रखा गया था सामान, जो जिस चीज़ से वो बनती थी या जो भी चीज़ था, द कार्टेजेस वर ग्रीस्ड विद द पॉर्क बीफ फैट विच वर फॉरबिडन टू मुस्लिम मैन। वो इस चीज़ के खिलाफ थे बिकॉज जो वो राइफ़ल थी वो किस चीज़ से ग्रीस की जाती थी? बीफ फैट, मतलब पॉर्क और बीफ फैट मीन्स जो गाय की मीट से वो लोग ग्रीस किया जाता था, उसके ऑयल का जो भी फैट था उस चीज़ से, वो जो मुस्लिम्स और हिंदूज़ के लिए फॉरबिडन है खाना, या फिर बिकॉज दे वर्शिप द काउज, तो उनके लिए ये चीज़ फॉरबिडन थी, लेकिन उन्हें वही राइफल्स यूज़ करनी पड़ती थी जो वो नहीं करना चाहते थे। दे कंप्लेन टू हेनरी लॉरेंस, द चीफ कमिश्नर ऑफ अवध। उन्होंने कंप्लेंट की हेनरी लॉरेंस से, जो अवध के चीफ कमिश्नर थे। ही इग्नोर्ड देयर कंप्लेंट बट दे वर इग्नोर्ड विद नो अदर चॉइस लेफ्ट, द सिपॉयज रेबल। उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी, तो इसीलिए उन्होंने रेबल किया। दे रिफ्यूज़ टू यूज़ द राइफल एंड अटैक्ड द आर्म्स। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया राइफ़ल को यूज़ करना एंड अटैक द डिपोर्ट टुक इट ओवर। उन्होंने क्या किया कि जो भी जिस आर्म से ही अपने फाइट, उन्होंने राइफ़ल यूज़ करने से मना कर दिया एंड उनके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर दिया बाय द आर्म। दे वर सून ओवरपावर्ड एंड पनिश्ड। लेकिन जो थे, उन्होंने, जो इंडियंस थे, इंडियन पीपल थे, दे वर सून ओवरपावर्ड, क्योंकि ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एंड जो उनके पास राइफ़ल्स या जो भी चीज़ें थी, दे वर बहुत जल्दी उन्होंने ओवरपावर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। द ब्रिटिशर्स रियलाइज़ दैट दे मस्ट बी प्रिपेयर टू डिफेंड देमसेल्फ। तो ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ किया कि उन्हें अपने आप को डिफेंड करना है, कि आगे चल के कोई भी असॉल्ट ना हो। द ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज वर शिफ्टेड टू अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड रेजिडेंसी। तो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को एक रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? रेजिडेंसी। All houses around the residency were vacated and demolished and complex were forfeited against any attack.
और उन्होंने जो उस घर के अराउंड सारे हाउसेस को खाली कर दिया एंड उसको ऐसा बना दिया कि कोई भी अटैक के लिए फॉर्टिटिव फाइट अगेंस्ट एनी अटैक, कि वो उससे बचा रहे. एज एंटिसिपेटेड द सिपाहीज अटैक द ब्रिटिश इन लखनऊ, बर्निंग एंड लूटिंग देयर बंगलोज. उन्होंने उसे बना दिया ताकि वहाँ पर आए एंड जो भी लूटना चाहता है तो हम उन्हें पकड़ लेंगे. एज अ प्लान उन्होंने ये बनाया. और एज़ उन्होंने जैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स ने सोचा था, इंडियंस आए, उन्होंने अटैक किया ब्रिटिशर्स पर. जो सिपाही जो भी अगेंस्ट था, रेबल कर रहे थे, उन्होंने जो भी लूटा, बर्निंग किया. ब्रिटिश रिस्पॉन्डिंग बाय अरेस्टिंग वाजिद अली शाह इन कैलकाता, इम्प्रिजनिंग हिम इन द फोर्ट विलियम. तो उन्होंने इसका कैसे बदला लिया? बाय अरेस्टिंग वाजिद अली शाह, अवध के प्रिंस जो नवाब थे उनको पकड़कर कैलकाता में रखकर एंड कहाँ पर कैद किया? फोर्ट विलियम में उनको बंदी बना के रख दिया. वाजिद अली शाह वॉज द husband of Begum Hazrat Mahal. Soon news arrived about the revolt in Meerut. The sepoys shot dead and British officers stationed there had declared Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor in Delhi, their leader. जो उन्होंने क्या किया, सिपाही ने ये सारी बातें उनको तक पहुँची, मेरठ में ये बात जाकर पहुँची. एंड द सिपाहीज हैड शॉट डेड द ब्रिटिश ऑफिसर सैंक्शन देयर. और मेरठ के जो भी लोग थे, जो भी इंडियन सिपाही थे, उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर ऑफिसर जितने भी थे उन सबको मार डाला एंड बहादुर शाह जफ़र को वहाँ का लीडर घोषित कर दिया. मुग़ल एम्परर इन दिल्ली, उनका वहाँ का लीडर बना दिया उन्हें. सो वी विल बी एंडिंग हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू एवरीवन.